Hello students, in our previous lecture we are studying about imperative sentence and we are studying how to change imperative sentence into passive voice. Okay, we have studied some rules. Today we shall study further. Okay, next, if the imperative sentence, if the imperative statement gives an advice, okay, or suggestion. See here, let us discuss let us discuss the matter. MATT here. Let us discuss the matter. Here, what is the rule? First let, then indirect object, then first form of verb, then direct object. अगर इस स्ट्रक्चर में है, if the statement is in this structure, let plus indirect object plus first form of verb plus direct object, then while changing into passive voice we shall write let plus direct object, let plus direct object plus be plus third form of verb plus preposition plus indirect object. Okay, if the imperative sentence structure is let plus indirect object plus first form of verb plus direct object, then while changing into passive voice we shall use let plus direct object will become the subject, then be plus third form of verb, then preposition plus indirect object. I am saying direct object and indirect object. Direct object, the things or the animals are called direct object, and indirect object, the persons are called indirect object. The persons are called indirect object, the things, animals, etc. are called direct object. Let's see the sentence. Let us discuss the matter. Here us, us, it is first person, so it is indirect object, and discuss is the first form of verb, and the matter is direct object. So what will be the passive voice? Let us discuss the matter. The answer will be let the matter M-A-T-T-E-R, let the matter be discussed, D-I-S-C-U-S-S-E-D, let the matter be discussed by us. You can either write by us or you can't. Only you can write let the matter be discussed. Okay, did you understand? Next, let us sing a song. So what will be the answer? Let a song be sung by us. You can either write by us or you can't. Next, it is said that if let us give suggestion, अगर ये सजेशन देता है, एडवाइस देता है, then we can also write like this. How?
take the example, let us discuss the matter. Let us discuss the matter. It is suggested, SUGGESTED, it is suggested that we should discuss, DISCUSS, discuss the matter. If it is a suggestion, then we can also change this statement like this. हम इस स्टेटमेंट को इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. क्या करेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस द मैटर. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन. turn her out. Turn her out. Okay, here her is object. When we shall use let in passive voice, then the object her will not be changed into she, because after let in passive voice the objective case is used, not nominative case. For this we have to write let her be turned out. Let her be turned out. Try to understand. In imperative sentence there are different types of sentences, so I am going to tell you about those sentences. Think that such type of sentence will be there, turn her out. Okay, and we shall use let while changing into passive voice. Then the object her, when it will become the subject of passive voice, it will not become she, because in passive voice after let we always use objective case, not nominative case or subjective case. For this it became let her be turned out. Okay, in imperative sentence we use be. Okay, let plus object will become subject and be plus third form of verb. Did you understand? Is it clear? Okay, next one we shall see. Think that it has been written like this. It is time. It is not imperative sentence. It is time to do our work. It is time to do our work. It is time to do our work. Okay. So how shall we change this sentence into passive voice? See its structure. It is time को it is time में रहने देना. ये to do, ये to infinitive structure में है. Infinitive structure में है. हम आपको पहले बता रखे हैं कि जब infinitive structure में आएगा आप उसको क्या करेंगे? To be plus वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे. To be plus वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे. समझ में क्या? So while changing into passive voice हम क्या लिखेंगे? इट इज टाइम को इट इज टाइम में रहने देंगे. इट इज टाइम को इट इज टाइम में रहने देंगे. फिर हम क्या यूज करेंगे? फॉर. ठीक है, इट इज टाइम को इट इज टाइम में रहने देंगे. फिर फॉर यूज करेंगे. फिर जो ऑब्जेक्ट था आवर वर्क, इट विल बिकम द सब्जेक्ट. इट इज टाइम फॉर आवर वर्क. इट इज टाइम फॉर आवर वर्क. नेक्स्ट, टू बी done.
It is time to do our work. It is time for our work to be done. तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप कहोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि भाई ईट प्लस बी वर्ब प्लस नाउन, ईट प्लस बी वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया वो ईट आया प्लस बी वर्ब प्लस नाउन का नाउन आया, उसके बाद प्रोनाउन यूज किया फॉर। इट इज टाइम फॉर आवर वर्क, जो ऑब्जेक्ट था ये क्या बन गया सब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर आवर वर्क टू बी डन। ये टू डू टू इंफिनिटिव में था तो इसको क्या कर दिया हमने टू बी के साथ बाकी थर्ड फॉर्म कर दिया। कोई और एक एग्जांपल, इट इज टाइम टू प्रिपेयर, P-R-E-P-A-R-E, it is time to prepare a model. It is time to prepare a model. Okay, तो आंसर विल बी इट इज टाइम को इट इज टाइम में रहने देंगे, इट इज टाइम को इट इज टाइम में रहने देंगे, इट इज टाइम फिर क्या यूज करेंगे फॉर, इट इज टाइम फॉर, देन ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, it is time for a model, then to plus first form of verb will be changing to be plus third form of verb, to be prepared, P-R-E-P-A-R-E-D. Okay, it is time for a model to be prepared. इस तरह ये it is time वाले स्ट्रक्चर में होता है। ओके, नेक्स्ट और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। और क्या होता है ना, इसमें लिखा रहता है so there is no money, there is no money to buy, there is no money to buy। here आप देख सकते हैं कि भी there is से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर नेगेटिव में नोन पर रखा है, फिर ये नाउन प्रयोग कर रखा है, फिर टू इंफिनिटिव का प्रयोग कर रखा है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे ना, ये देयर इज नो मनी को देयर इज नो मनी में रहने देंगे, जैसे देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। इसके बाद फिर ये क्या हो गया टू इंफिनिटिव है, इसको क्या लिखेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बी बट, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है देयर इज टाइम टू स्टडी, ये पॉजिटिव में आ गया तो क्या लिखेंगे देयर इज टाइम, फिर ये टू स्टडी जो था क्या हो गया देयर इज टाइम टू बी स्टडीड, STUDIED, टू बी स्टडीड। ये इस तरह देयर इज प्लस नाउन प्लस टू इंफिनिटिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को हमने ऐसे चेंज किया। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर बी वर्ब आएगा, बी वर्ब यानी कि इज ए वर्ब, बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, इस तरह वाज, वर, हैव, हैज, इस तरह बी वर्ब आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा टू इंफिनिटिव आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है क्या। इसके बाद फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में अगर आया तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में आएगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट था तो वो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार बी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे,
इजेमार हुआ जो है जो भी है विभार का प्रयोग करेंगे, ठीक है क्या। इसके बाद क्या लगेंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट विल बी द ऑब्जेक्ट। ओके, इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बी वर्ब आएगा, बी वर्ब मतलब इज एम आर हुआ जो इस तरह आएगा, नेक्स्ट टू इंफिनिटिव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा, और टेंस नहीं बदलता है तो टेंस के अनुसार ये सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आना है उसको लगाएंगे। इसके बाद टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, फिर प्रीपोजिशन बाय, देन जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में बदल। एग्जांपल, ही इज टू विजिट, ही इज टू विजिट दिल्ली, ही इज टू विजिट दिल्ली। इसमें ही सब्जेक्ट है, बी वर्ब है, टू इंफिनिटिव है, फिर दिल्ली इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट दिल्ली था इधर ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया दिल्ली, फिर ये ही के साथ इज था, दिल्ली के साथ भी इज लगता है, दिल्ली इज, फिर टू विजिट, टू इंफिनिटिव है, इसको हम क्या लिखेंगे, टू बी के साथ भाई की थर्ड फॉर्म, टू बी विजिटेड, टू बी विजिटेड। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट क्या था, ही, क्या बन गया, हिम, ही इज टू विजिट दिल्ली, दिल्ली इज टू बी विजिटेड बाय हिम। वन मोर एग्जांपल, और कोई एग्जांपल, जैसे आई एम टू राइट, आई एम टू राइट अ बुक, I am to write a book, ये पहला सब्जेक्ट आया, बी वर्ब आया, फिर टू इंफिनिटिव, फिर ऑब्जेक्ट। जब चेंज करेंगे ये ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, और बुक, आई के साथ इधर एम था बी वर्ब, तो ए बुक के साथ क्या लगेगा, इज। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें इजेमार लग रहा था, इसमें भी इजेमार आएगा, ए बुक इज, फिर क्या हो जाएगा, टू बी written, WRITTEN, a book is to be written by me। समझ में आ गया, ये सारे टू इंफिनिटिव स्ट्रक्चर के थे। और कुछ मिससेलेनियस सेंटेंस भी होते हैं, उसको भी हम बता देते हैं आज, ताकि लगभग ये वॉइस खत्म हो जाए। ऐसे तो आगे बहुत भी है इसमें, लेकिन इतना तक हम बता रहे हैं आपको आज। कुछ मिससेलेनियस सेंटेंस, जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि पहले ये एक सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये क्या है, ये इसका कंप्लीमेंट है, ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट, यानी कि एक एडजेक्टिव आता है। जब इस तरह आता है तो इसको कैसे चेंज करते हैं, नाम इसका चेंज करेंगे, रोज इज स्वीट, ठीक है क्या। पहले जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट को लिया और उसके साथ बी वर्ब का प्रयोग किया, प्रेजेंट में था इसलिए बी वर्ब का प्रयोग किया, रोज इज, इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट था उसको लिखा स्वीट, रोज इज स्वीट, फिर व्हेन स्मेल्ट, SMELT, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ये स्मेल, स्मेल्ट या स्मेल, स्मेल्ड, ऐसा भी दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, यू कैन आल्सो राइट। ओके, नेक्स्ट, मैंगोज
टेस्ट, मैंगोज टेस्ट, रॉ मैंगोज कर देते हैं इसमें, रॉ मैंगोज, रॉ मैंगोज टेस्ट सोर, रॉ मैंगोज टेस्ट सोर। सो रॉ मैंगोज ये सब्जेक्ट था, टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और सोर इसका कंप्लीमेंट था। तो इसको भी इसी स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो पहला रॉ मैंगोज था तो रॉ मैंगोज लिखेंगे, रॉ मैंगोज। तो रॉ मैंगोज ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे, आर। रॉ मैंगोज आर सोर, रॉ मैंगोज आर सोर when tested, T-A-S-T-E-D, when tested. Or we can write raw mangoes are sour when they are tested, because यह प्लूरल नंबर में है इसलिए हम they लिखेंगे, यहाँ सिंगुलर था इसलिए हम it लिख रहे थे। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।